آج کے دن پر ماشاءاللہ سے 27واں روزہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، جمعے کا دن ہے، رمضان ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور مجھے آپ بڑے افسردہ لگ رہے ہیں، ہم بھی بڑے افسردہ ہیں کیونکہ رمضان کے جانے کا غم، رمضان کے جانے کا دکھ ہم سب کے دلوں میں برقرار ہے۔ بہت کچھ سوچا تھا، بہت کچھ چاہا تھا، لیکن کچھ کر نہ سکے ہم لوگ، جو ہمیں اس رمضان کو گزارنے کا حق تھا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رمضان کا استقبال کرتے تھے، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ کسی بہت خاص شخصیت کا انتظار ہو، اور اس کو جس انداز کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے، مرحبا کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تاکید کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے او آ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون آ گیا؟ کہا وہ آ گیا۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے آ رہا ہے؟ کیا کسی سے ہماری جنگ ہونے جا رہی ہے؟ یا کوئی آپ کو ایسی وحی آئی ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے کون آ رہا ہے؟ تو پھر آپ فرمانے لگے کہ رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تیاری کرتے تھے رمضان کی، آپ نے تینوں عشروں کا اعتکاف بھی کیا، پھر 2 عشروں کا بھی کیا، اور 1 عشرے کا تو آپ نے کیا، اس لیے کہ رمضان کی ایک ایک ساتھ کو قیمتی بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رہنما ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملک اور قوم اور ملت جو بے اس شک، وقت تھی، ان کے لیے آپ بے شک، سراپا ہدایت تھے، بے شک۔ ان کے لیے رول ماڈل تھے، تو وہ جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے تھے تو پھر وہی عمل کرتے تھے۔ جب آپ عمرہ کرنے گئے لیکن اجازت نہ ملی اور کہا کہ آپ پھر اگلے سال آئیں گے، صحیح۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس غم میں تھے کہ ہم نے تو عمرہ کرنا تھا اور ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ تھا ہی نہیں، جس طرح مکہ والوں نے روکا، تو آپ کے ساتھ جو اصحاب رسول تھے وہ سارے بہت زیادہ غمزدہ بھی ہوئے، فکر مند بھی ہوئے کہ ہم نے تو احرام بھی باندھا تھا، ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ تھا، ہمیں کیوں روکا؟ تو اتنے آپ کے صحابہ اس غم میں آ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس وہیں سے روانہ ہونے لگے تو ان سب نے احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المؤمنین عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ احرام کھولیں، جب آپ احرام کھولیں گے تو یہ احرام کھول لیں گے، یہ اس غم میں ہیں، اس کیفیت میں ہے کہ شاید یہ آپ کو دیکھ کے ہی ان کے احرام کھولیں گے۔ تو پھر جب آپ نے احرام کھولا تو پھر ان سب نے احرام کھولا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب میرا اللہ مجھے اپنے وطن، مجھے اپنے دیس، مجھے اپنے شہر عزت کے ساتھ لے کے آئے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لا رہے تھے، ہمارے ہاں جو تھوڑا سا کوئی کسی کو کچھ مل جائے تو چوڑا ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کائنات ملی، فتح مکہ، اور فتح مکہ جیسے عظیم الشان فتح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جو اونٹنی ہے کوہان کے قریب لے کے آپ جب داخل ہوئے، اور آپ نے اعلانات کیا کیے، آپ نے بروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ نے کس قدر آپ کے اخلاق تو اس دن دنیا نے دیکھے کہ اس دن تو بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے تو جریر بن سراقہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو کہہ دیا تھا کہ راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہیں، آپ نے وہاں رہنا ہے جب تک سارا لشکر گزر نہ جائے کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اور شفیق جیسی شخصیت اس کائنات کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، تو اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن رمضان کا اتنا قیمتی بنا کے دکھایا، گویا کہ یہ وہ رمضان ہی ہوگا اگر ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اور اس حالت میں کہ وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قیام بھی کرے، روزہ بھی رکھے، اور
भूख भी बर्दाश्त करे, प्यास भी बर्दाश्त करे, थके भी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उसकी वो जो मुंह की जो बदबू बन जाएगी उसका अजर मुश्क और ज़ाफ़रान से, अंबर से ज़्यादा इसके लिए गिना जाएगा। और फिर यही तो आपने फरमाया कि मेरे रब का फरमान है कि सारी इबादत का अजर मलाइका लिख लेते हैं। ये वाहिद इबादत है जिसका अजर और सवाब मैं खुद हूँ। सुभान अल्लाह। एक तो होता है मैं खुद दूंगा कि मैं खुद हूँ, तो लिहाजा ये वो रोज़ा है जिसके लिए ऐलान होगा कल क़यामत में, कहाँ है रोज़ेदार, कहाँ है रोज़ेदार। तो जो लोग होंगे कहा आप इस दरवाजे से चले जाएं, कहाँ है सब्र वाले आप इस रास्ते से चले जाएं। अब हम आते हैं अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की तरफ कि इस वतन अजीज़ ने आज तक पूरी दुनिया में जो पैगाम दिया वो अमन का था, जो पैगाम दिया वो वहदत का था, वो सलामती का था, वो यकआंगी का था। उस पैगाम ने रंग और नस्ल की तफरीक मिटा दी। हकीकी मानों में अगर हम पूरी दुनिया को कोई कौम दिखा सकते हैं तो वो कौम सिर्फ पाकिस्तानी है। अगर हम पूरी दुनिया को किसी कौम का तारुफ फर्द वाहिद से करवा सकते हैं तो वो पाकिस्तानी हैं। इस 24-25 करोड़ अवाम एक शख्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो तो सारी कौम उनके लिए दुआएं कर रही हो। अगर हमारा खिलाड़ी मैच खेलने के लिए मैदान में उतरा हो तो सारा पाकिस्तान दुआएं कर रहा होता है और सारे पाकिस्तान के दिल धड़क रहे होते हैं। तो इस मुल्क का जो भी सुकूत है वो जिस महाज पे निकल जाए, चाहे वो सख्त से सख्तरीन महाज ही क्यों ना हो, जो पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ के मुल्क का दिफा करने पे आए, या जमीनों के अंदर चले जाएं, या फिर समंदरों के अंदर चले जाएं, लेकिन इस मुल्क के रखवाले, इस मुल्क की माएं और बहनें वो अपने भाइयों के लिए कहती है कि हमें फख्र है कि मेरा भाई, मेरा वालिद इस वतन के लिए कुर्बान हुआ। सबसे बड़ी चीज़ के पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अमली जामा पहनाया और इस्लाम के नाम पर ये मुल्क हासिल किया गया। और इस्लाम के लगवी मायने ही सलामती, अमन के हैं, तो हम उसी के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया। ताबीर अल्लामा इकबाल ने की और तामीर वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की। किस अंदाज के साथ हमें ये वतन हमारे हवाले किया और ये कह के कि इसकी अब हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे। अब कुछ तख्लीकी निज़ाम को भी देखना है कि अल्लाह की तरफ से जो निज़ाम चला है कि 27वीं शब, फिर शब जुम्मा, हाँ माशाल्लाह, और फिर जुम्मतुल विदा, और फिर जुम्मतुल विदा, और फिर ये तोहफा मिल जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ रिवायात से मिलता है कि आखिरी ज़माने में जब बड़ा इनकलाब आएगा तो वो है ना कि मीर अरब को ठंडी हवा कहाँ से आई, हाँ। तो ठंडी हवा तो यहाँ से गई, यहाँ से। तो ये वो मुल्क होगा जो इस्लाम की, इंसानियत की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में अमन को लाने में किरदार अदा करेगा। तो बेशक मुश्किलात तो होती हैं, हर कौम ने बर्दाश्त की है, लेकिन अब हमने अपनी बहैसियत मिन हैसुल कौम इनफरादी तौर पर अपने मुल्क के लिए ज़रूर कुछ ऐसा करना है कि हम सुरखरू हों अपने आप को कि मैंने इस मुल्क के लिए अपनी जान तक या अपनी ज़ात तक क्या रखा था। मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब सवाल मेरा अपने आप से है मैंने मुल्क को क्या दिया है। तो इसके लिए ये 27 रमज़ान है आज, और ये वो दिन है 6 से 10 लाख लोग इसके लिए कुर्बान हुए। 6 से 10 लाख। उन्होंने क्या सोचा था? ट्रेन दिल्ली से चल के आती थी, जब लाहौर आती थी लाशें लाशें होती थी, लोग रास्तों में कट गए, लोगों की रास्तों में इज्जतें नीलाम हो गई, लोग कुएं में गिर गए। और जो बच्चा कहते थे, कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे भी थे, वो कहते थे कि जब हम आ रहे थे तो जब हमें लोग ढूंढने निकले कि कहाँ हैं वो लोग जो पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, तो कहा कि जब बच्चा रोता था और हमें लगता था कि ये क्यों रो रहा है, कि ये तो हमारी पकड़ करवा देंगे, तो वो लोग आके हमें पकड़ लेंगे। का वो बच्चा रोता था भूख से, क्योंकि 4-4, 5-5 दिन से बच्चे के मुंह में कुछ तक न गया। तो मैं क्या करती थी, मैं उन बच्चों का खुद गला दबा देती थी। इतना
इतनी कुर्बानी हुई कि कहीं ये आवाज अगर उन तक सब मारे गई तो जाएंगे। सारे मारे जाएंगे। तो जो मुल्क इतनी कुर्बानियों से हासिल हुआ हो, हमें कभी ख्याल भी आता है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, दुनिया में जाएं किस मुल्क में इतनी आज़ादी है, दुनिया में जाएं किस मुल्क में लोग इतना कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई कमा रहा है तो यहां से, सबसे ज्यादा अगर किसी को इज्जत मिली है तो यहां से मिली, बेशक। जितनी मोहब्बत मिली है तो पाकिस्तान से मिली। आप एक दिन यहां से बाहर रह के दिखाएं, आपको बेगानगी महसूस होगी। वतन हमारा अपना है, इसके लिए जो कुर्बानी हमने देनी चाहिए थी, अब तक शायद मैं सोचता हूं हम उन कुर्बानियों की तरफ नहीं गए, हम उन्हीं की कुर्बानियां याद करते हैं जिन्होंने दी थी। हमने क्या कुर्बानी की है? हमने नहीं दी, हमने तफरका पैदा किया, हमने कौमियत डाली, हमने लिसानियत की बुनियाद रखी, हमने सियासी बुनियादें रखी हैं, हमने इलाकाई बुनियादें रखी हैं। इससे बालातर होके मुल्क के लिए जो काम करते हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखते। तो जवेरिया मेरी बहन, हमें अब इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना होगा कि इस 27वीं शब जिस तरह रात को गुजरी है। मुमकिन हो सकती है कि वो लैलतुल कदर होगी, लेकिन अब जो दिन चढ़ा है ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, पाकिस्तान की बका का दिन था, पाकिस्तान की सालमियत का दिन था। तो आए हम सब इसकी बका के लिए, इसकी फलाह के लिए, इसकी कामयाबी के लिए, इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत 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 खूबसूरत बातें की आपने, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने मुल्क से उस तरह प्यार करें, अपने मुल्क से के लोगों से भी प्यार करें, क्योंकि मुल्क से तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुल्क से तो प्यार करते हैं लेकिन मुल्क के लोगों से प्यार नहीं करते। बेशक। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से, अपने मुल्क के लोगों से, और ख़ासकर वो लोग जो कि कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, दुनिया में उसका नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी तो बहुत इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई करनी चाहिए।